Hello. Today I will discuss on law of conservation of momentum. You better know about the law of conservation of mass, law of conservation of energy, but now here we study about the law of conservation of momentum. ठीक है. How can we define the law of conservation of momentum? कहता है कि किसी सिस्टम पर यदि कई फोर्स एक साथ लग रहे हों और उन सभी फोर्सेज का वेक्टर सम 0 हो, तब मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन कंजर्व, अर्थात वह कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं. द वेक्टर सम, इफ द वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेज, all external forces acting on a system, then the momentum acting on a system be 0, then the momentum of the system is conserved, that is remain constant. अर्थात यह क्या रहता है? कांस्टेंट. यदि कई फोर्सेज किसी सिस्टम पर एक साथ लगते हों और उनका वेक्टर सम 0 हो, तब उस सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वह कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है. अर्थात एट एनी टाइम देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. किसी भी समय सिस्टम के मोमेंटम में कोई परिवर्तन नहीं होता है. वी कैन प्रूव बाय using the third law of motion. Suppose that we consider a system of two bodies, an isolated system of two bodies A and B, which moving initially along a straight line with velocity u1 and u2 such that u1 is greater than u2. After some time, they get collide. The collision takes place, या हम कह सकते हैं इंटरेक्शन for a short time t, and then get separated and moving
along the same path with velocity v1 and v2. Is clear? We consider an isolated system of two bodies A and B which are moving initially along a straight line with velocity u1 and u2 such that u1 is greater than u2. After some time they get collides. The collision takes place, that is collision means interaction, for a short time t, and then get separated and moving along the same path with the velocity v1 and v2. This is body A. मान लिया कि यह बॉडी A है, ठीक है, मास m1 है, और यह बॉडी B है, मास m2 है, मास क्या है, m2 है। यह मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से, यह मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से, और ये दोनों कुछ समय के बाद कोलाइड्स करते हैं। दोनों जो है, दोनों के बीच में कोलिजन होती है, ठीक है, और ये कोलिजन जो है बहुत शॉर्ट टाइम टी तक के, उसके बाद फिर ये सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होने के बाद सेम पाथ अलोंग द सेम लाइन मूव करते हैं विथ v1 वेलोसिटी, और ये जो है v2 वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ठीक है। तो एक ही इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ A बराबर m1 v1, उसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ B बराबर m2, है ना। इसलिए टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बराबर क्या हो गया? ये बिफोर कोलिजन यानी टक्कर से पहले बराबर हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ A बराबर m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ B बराबर m2 v2, ठीक है। इसलिए टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन बराबर क्या हो गया? m1 v1 plus m2. So according to the law of conservation, the total momentum of system before collision should be equal to the total momentum of system after collision according to law of conservation of momentum क्या होना चाहिए? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होना चाहिए, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 ये होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी गोइंग टू प्रूव दैट।
अब इसी को हम आगे इसको प्रूव करते हैं। इट क्लियर? Suppose that during the interaction यही प्रूव करना है। ठीक है, सपोज during the interaction ठीक है, the both body exert a force on each other। ठीक है, let F be the force exerted on B by A। FAB is equal to the force exerted on A by, ठीक है, due to the interaction there is change in momentum। ठीक है, the force BA bring the change in momentum of body B। this force FBA bring the change in momentum of B। B के मोमेंटम में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी बराबर क्या हो गया? M2 B2 माइनस M2। Since this collision lasted for the very short period, ठीक है, इसी तरह हम देखें FAB bring the change in momentum of A। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ A बराबर M1 V1 माइनस M1। सपोज the collision last for a short time t, then according to the impulse क्या होगा? FBA according to the second law of motion, the rate of change of momentum is proportional to the applied force। so the F into T is equal to क्या होगा? M2
v2 minus m2 u2. Similarly, f FAB into T बराबर M1 V1 माइनस M1 P1. इट क्लियर? ठीक है. देखिए आपने कि सेकेंड लॉ से हम जानते हैं कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, that is the impulse is equal to the change in momentum. Impulse is equal to the change in momentum. So according to the third law of motion, F T FBA T बराबर माइनस FAB T. एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन थर्ड लॉ के अनुसार होता है. तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका FBA बराबर माइनस FAB. अब इसकी वैल्यू हम रख दें. FBA M2 V2 माइनस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 माइनस M1 क्लियर. ऑल आर रिटेन इन द मैग्नीट्यूड, नॉट इन द वेक्टर फॉर्म. ये सभी को किस में रखा गया है? ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में. वेक्टर साइन में यदि रखेंगे तो इसके ऊपर ये हो जाएगा. तो इसलिए हम यहां पर सबको किस रूप में रखा है? मैग्नीट्यूड फॉर्म में. तो देखें, इसको इधर लेके चले आए. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम माइनस, so M2 V2 minus M2 U2 equal to minus M1 V1 plus M1 U1. इसको इस तरफ लेकर चले जाएं, इसको इस तरफ लेकर तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. तो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 U2. यही प्रूफ करना था. The total initial momentum is equal to the total final momentum. That means the momentum of the system remain conserved. That means the momentum of system remain conserved. Is it clear? Now we see some example which is based on the law of conservation of momentum. जैसे first example, a recoil of the gun. A recoil of the gun. Examples: a recoil of gun. A recoil of gun.
capital M take the mass of gun, a small m mass of bullet, capital V velocity of यानी recoil velocity of gun, a small v the velocity of bullet. ठीक है. Initially the gun and the bullet at rest, so the initial momentum of the system gun bullet will be 0. So the initial momentum of the system is क्या होगा? 0. Is clear? तो initial momentum क्या होगा? Because the mass gun and the bullet both are in rest. When the bullet fire, the bullet is moving with velocity v. ठीक है. बुलेट क्या होगा? v वेलोसिटी के साथ आगे जाता है. तो इन रिएक्शन द गन मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ. आगे की ओर बुलेट जाता है तो रिएक्शन में रिक्वायल वेलोसिटी यानी गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिसे रिक्वायल कहते हैं v वेलोसिटी से अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ. सो द टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, जब हम फायरिंग करते हैं ट्रिगर दबाने के बाद, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग बराबर क्या होगा? mv प्लस mv. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन the momentum should be conserved. That means the initial momentum should be equal to the final momentum. So according to law of conservation of momentum, mv plus mv is equal to 0, इसलिए mv is equal to माइनस mv और v is equal to माइनस m by m into v. We can utilize this relation to find the velocity, recoil velocity of the gun. इस इक्वेशन को अप्लाई करके हम रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द गन हम निकाल सकते हैं. इट क्लियर? अनदर यह है रिक्वायल. एक दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं. मशीन गन फायरिंग बुलेट. ठीक है. मशीन गन जो होता है बुलेट फायर करता है, और आप हम जानते हैं कि मशीन गन से ये नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकंड, 1-2 नहीं होती है, 1 सेकंड में कई बुलेट जो है फायर होते हैं. तो मशीन गन को होल्ड करने के लिए आइदर वी फिक्स ऑन द स्लीपर और द कार एनीथिंग, तो मशीन गन को होल्ड किया जाता है. सपोज दैट m, स्मॉल m बराबर मास ऑफ बुलेट. ठीक है.
v बराबर वेलोसिटी ऑफ बुलेट है ना। n बराबर नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड, नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, या in t सेकेंड। n is the number of bullet fired in t सेकेंड। अब जरा हम देखें, इनिशियली मशीन गन इज एट रेस्ट, so the total momentum of the system, that is the machine gun bullets, will be 0. तो initially the system is at rest. ठीक है, so the initial momentum क्या होगा ऑफ सिस्टम बराबर 0। Now the machine gun fired the bullet. ठीक है, now machine gun fired the bullet in t time. What number of the bullet fired? n. ठीक है, तो each bullet gain the momentum mv. So the n bullet in forward direction n mv, इसलिए टोटल मोमेंटम इसलिए टोटल मोमेंटम of the system in forward direction, total momentum of the system in forward direction बराबर my n m। Is it clear? ये कितना हुआ एन एम भी। ठीक है, टोटल मोमेंटम। अब हम देखें, जब मशीन गन से फायर करते हैं, मशीन गन जिसको जो स्लीपर में होल्ड किया, तो इट ऑल्सो as a reaction it moves in the backward direction. as a result क्या होगा, या क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इन ऑर्डर टू होल्ड, यानी मशीन गन अपनी पोजीशन पर बनी रहे, तो वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स इक्वल टू इट्स रिएक्शन। ये मशीन गन जो है, जब बुलेट फायर होगी तो बुलेट आगे की ओर जाएगी और मशीन गन पीछे की ओर रिकॉइल करेगा। ठीक है, तो 30 सेकंड में यह n बुलेट करता है, तो 30 सेकंड तक इसमें बुलेट को होल्ड करने, सॉरी मशीन गन को होल्ड करने के लिए वी हैव टू अप्लाई द फोर्स। ठीक है, टू काउंटर एक्ट द रिएक्शन। तो हमें जो है उस रिएक्शन को काउंटर एक्ट करने के लिए उतनी ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू होल्ड द मशीन गन एट इट्स पोजीशन। सपोज दैट F बराबर फोर्स अप्लाई टू होल्ड द machine gun
at its position against the reaction. ठीक है, यह फोर्स है. For what time? T. That the total initially momentum क्या है? 0 है. और टोटल मोमेंटम क्या हो गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? 0 माइनस एन एम चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या होगा? बराबर माइनस एन एम वी. So the impulse Ft is equal to the change in momentum nmv. This is the equation we use in the bullet firing. ठीक है. Now we come on the another topic. एक होता है variable mass. Some numericals are come according to the Einstein. You know, he has given the relation between the rest mass and a mass of body which is in motion, and that relation is given as the m is equal to m naught by root under 1 minus v square by c square, where v is the velocity of the mass m naught is the mass of body at rest, and c is the velocity of the light. ठीक है. That means we can say the mass is variable. Mass is variable. So according to the when mass variable, या हम ऐसे लिख दें इक्वेशन फॉर वेरिएबल मास. ठीक है. तो है ना, from the second law of motion, second law of motion से हम जानते हैं F is equal to d pi by dt, dp by dt, और we know that P is equal to mv, so we may write this equation F is equal to d mv by dt. So if both are variable, if both m and v are variable, दोनों वेरिएबल हो, तब f is equal to dm by dt into v plus m dv by dt. Clear? If v is constant, then from this relation f is equal to v dm by dt. This is for the equation. This is for variable mass. ठीक है. अब इससे रिलेटेड एक और हमारे पास टॉपिक्स है. सपोज दैट ए कन्वेयर बेल्ट इज मूव्ड over a pulley
है ना, डिराइव बाय ए मोटर। एक कन्वेयर बेल्ट है जो पुली के ऊपर है और उसे मोटर के थ्रू घुमाया जा रहा है। उसके ऊपर एक कोनिकल यानी हम फनल कह सकते हैं, उसके ऊपर है और उसके जरिए सैंड जो है उस कन्वेयर बेल्ट पर गिराया जा रहा है। ठीक है। द रेट ऑफ द सैंड फॉल ऑन द कन्वेयर बेल्ट इज dm/dt। ठीक है, आइए हम देखते हैं। Sand falling on a moving conveyor belt। ठीक है, मान लिया कि सैंड जो है एक मूविंग कन्वेयर बेल्ट पर गिर रहा है, तो मान लिया रेट of mass of sand है ना, rate of mass of sand falling बराबर dm/dt है ना। the STD the velocity dm/dt भी बराबर the STD velocity of conveyor belt। यह क्या है? कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, तो इनिशियली एट रेस्ट, जब ये रेस्ट में है तब वैसी स्थिति में यानी कन्वेयर बेल्ट भी रेस्ट में है, नो सैंड इज फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, तब हॉरिजॉन्टल मोमेंटम यानी सैंड जो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर है, ठीक है, इज मूविंग, तो इट इज इनिशियली एट रेस्ट यानी नो मोशन इन द कन्वेयर बेल्ट। तब जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम होगा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या होगा? 0। ठीक है, अब मान लीजिए कि द बेल्ट इज मूविंग विथ स्टेडी वेलोसिटी v एंड द सैंड इज फॉलिंग एवरी dt टाइम में dm। सो द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, पर सेकेंड है ना, horizontally the momentum change per second बराबर क्या होगा? v into dm/dt, यही होगा, वेलोसिटी इंटू मास। तो एवरी सेकेंड कन्वेयर बेल्ट इज गेनिंग द मास, यानी हर सेकेंड में, ये तो एक सेकेंड में, तो हर सेकेंड में इतना मास वो क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। सो वी नीड टू द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द कन्वेयर बेल्ट। सो वी नीड द एक्सटर्नल फोर्स in the direction of the motion to move the conveyor belt।
क्योंकि एवरी टाइम हर सेकेंड में इतना मास जो है वह गेन कर रहा है। तो यह स्टेडी रूप में यह मूव करता रहे, यानी द मोमेंटम चेंज पर सेकेंड हमेशा बना रहे, इसके लिए वी नीड एक्सटर्नल फोर्स। एंड हाउ कैन द एक्सटर्नल फोर्स बी अप्लाई? बाय यूजिंग द मोटर। So the power supply by the motor, what power by supply by, if the P बराबर power है ना, सप्लाई बाय मोटर, जिसकी सहायता से हम कन्वेयर बेल्ट को घुमा रहे हैं, और इसके लिए हमें क्या होगा, ताकि स्टेडी रेट से या इतना जो है चेंज मोमेंटम होता रहे एवरी सेकेंड। ठीक है, तब P बराबर क्या होता है, P बराबर F is the external force applied on the moving the conveyor belt, so the power supply by the motor F, तो F is equal to क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम V dm by dt, यह क्या हो गया, V dm by dt into V equal to V square dm by dt, यानी P बराबर V square dm by dt। अब यहां देखें, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि v यहां कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मास इज द वेरिएबल, जैसे हमने पहले मास वेरिएबल मास में रखा, तो v में राइट एज हम आपको दिखा देते हैं mv स्क्वायर डी बाई डी टी, हम आपको दिखाने के, यदि इसका हम डिफरेंशियल करें तब v स्क्वायर इंटू डी एम बाई डी टी प्लस m डी वी स्क्वायर यानी 2m डी वी बाई डी टी। तो v क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डिफरेंशियल क्या होती है, 0 होती है, तो ये टर्म क्या हो गया, 0, तो हमारा यही टर्म बच गया यदि इतने का। तो इसलिए हम यहां पर है ना v को क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो v में राइट एज इस तरह हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बराबर डी बाई डी टी एम वी स्क्वायर। यदि अब एक और चीज देखें, दूसरे इधर मल्टीप्लाई किया डी बाई डी टी और इसके अंदर रख दिया 1/2 mv², तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, इसलिए P बराबर 2 dk बाई dt, यानी पावर सप्लाई बाय द मोटर इज इक्वल टू द ट्वाइस of the rate of the kinetic energy of the gained by the conveyor belt. Rate of the kinetic energy gained by the conveyor belt. यानी दूसरे शब्दों में कह दें कि जो काइनेटिक एनर्जी एवरी सेकंड जो इंक्रीजिंग कर रही है उसके ट्वाइस के बराबर होगा the power supplied by the motor. So this is the equation used for the sand falling in conveyor belt to find out the what power supplied by the motor or what force required to continue the conveyor belt to move with a steady velocity v, whereas it gaining the mass every second dm by dt. Is it clear? In the next
session I will discuss on connected body. हम जो है अब कनेक्टेड बॉडी के ऊपर डिस्कस करेंगे. Moving when the two or more body join with a string, or when two or more body are in contact of each other. ये कनेक्टेड बॉडी के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे. And then today, thanks.